Introduction of nucleus. A prominent, well-defined, small, round and membrane-bound nucleus is present in the eukaryotic cell. जब कभी हम किसी यूकैरियोटिक सेल को अंडर द माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं तो हमें यूकैरियोटिक सेल के सेंटर में बहुत ही प्रोमिनेंट और क्लियर ऑर्गेनेली नजर आता है जो कि स्मॉल होता है साइज में, राउंड होता है मोस्टली और डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है. इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियस का. लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस. It controls the cell's growth and reproduction as it contains cell's hereditary material. Most of the functions of the cell are controlled by the nucleus. Cell के growth में भी nucleus help करता है, then उसकी reproduction में भी help करता है. Reproduction में किस तरह से help करता है? Because nucleus के अंदर hereditary material present होता है in the form of DNA. Look at this. Inside the nucleus, there are present chromosomes which are made up of DNA. DNA is the basic unit of heredity. Cell growth here means that it controls the increase in the size of the cell and the development of the cell as well. Size को किस तरह से increase करने में nucleus help करता है? By increasing the volume of cytoplasmic content and organelles of the cell. Let's see the location of the nucleus. एनिमल और प्लांट सेल में न्यूक्लियस की लोकेशन स्लाइट डिफरेंट होती है. किस तरह से होती है? लेट्स सी. इन एनिमल सेल्स न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल, व्हाइल इन प्लांट सेल, इन मैच्योर प्लांट सेल, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, न्यूक्लियस इज पुश्ड टू अ साइड. लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. दिस वन इज द एनिमल सेल एंड दिस वन इज द प्लांट सेल. एक मेच्योर प्लांट सेल के अंदर बड़े साइज का वैक्यूल प्रेजेंट होने की वजह से न्यूक्लियस थोड़ा सा साइड पे प्रेजेंट होता है, वाइल एनिमल सेल में क्योंकि बहुत बड़ा साइज का वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता बल्कि छोटे छोटे साइज के बहुत सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. दैट्स वाई कि न्यूक्लियस मोस्टली सेंटर में प्रेजेंट होता है. लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को हम इन हेडिंग्स के अंडर स्टडी करेंगे. नंबर 1 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नंबर 2 न्यूक्लियोप्लाज्म, number 3 nucleolus, and number 4 chromosomes. Let's discuss it one by one. Nuclear membrane. A double membrane known as nuclear envelope surrounds the nucleus. It acts as a semi-permeable membrane because of the presence of many small pores in it. Let's understand it with the help of this diagram. Nucleus को surround कर रही होती है एक double membrane जिसको हम बोलते हैं nuclear envelope और nuclear membrane. Look at here. Here is present a double membrane. This one is the outer membrane and on the inner side here is present the inner membrane. So nuclear envelope or nuclear membrane is a double membrane. हम इस nuclear membrane को semi-permeable membrane भी बोलते हैं because there are present a large number of small pores inside the nuclear membrane. इस वजह से हम इसको semi-permeable membrane भी बोलते हैं. Means ये membrane act करती है as a semi-permeable membrane by allowing a few materials to move inside and outside of the nucleus. Next is the nucleoplasm. A granular fluid known as nucleoplasm is present inside the nuclear envelope. It contains one or two nucleoli and chromosomes. Nuclear envelope के next जो चीज हमें नजर आती है न्यूक्लियस में वो है nucleoplasm. ये एक granular fluid होता है. इसमें ग्रैन्यूल्स और पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. लुक एट इन दिस डायग्राम. ये जो ग्रैन्युलर फ्लूइड आपको नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म. इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर डार्क स्पॉट नजर आ रहा है. इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोलस का. ये अगर तो सिंगल प्रेजेंट है किसी न्यूक्लियस में तो हम इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं. अगर एक से ज्यादा है या दो हैं तो देन इनको हम न्यूक्लियोलाई बोलते हैं. Next is the nucleolus. It is a dark spot and it is the site where ribosomal RNA is formed and assembled as ribosomes. Look in this diagram. ये जो dark spot आपको नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं nucleolus. Nucleolus को किसी किस्म की membrane ने surround नहीं किया होता but it is just sitting in the nucleoplasm. Nucleolus is an important site for the assembly of ribosome subunits because यहाँ nucleolus में ribosomal RNA and protein present होते हैं जो कि assemble होते हैं in the form of ribosomes. राइबोसोम का स्ट्रक्चर डिटेल में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि राइबोसोम जो हैं
they are containing the large and small subunit. तो जैसे ही राइबोसोमल के सब यूनिट स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट कंबाइन करते हैं, देन उनको रिलीज करवा दिया जाता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. सो दैट्स व्हाई न्यूक्लियोलस को एक इंपॉर्टेंट साइट समझा जाता है राइबोसोम के सब यूनिट्स की असेंबली के लिए. नेक्स्ट आर द क्रोमोसोम्स. Chromosomes are composed of DNA and proteins. They are in the form of thread-like structure known as chromatin in non-dividing phase but can be visible in dividing phase. DNA जब प्रोटीन्स के साथ मिलते हैं तो क्रोमोसोम्स बनाते हैं. बट अगर हम इनको स्टडी करना चाहते हैं तो हम सेल के 2 फेजेस में इनको स्टडी करते हैं. एक सेल का फेज होता है नॉन डिवाइडिंग फेज. जब सेल रेस्टिंग स्टेज पे होता है उसे बोलते हैं इंटरफेज. इंटरफेज में सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता बल्कि रेस्टिंग स्टेज पे होता है. तो उस टाइम पे हमें क्रोमोसोम्स जो है वो क्रोमाटिन मटेरियल जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उस फॉर्म में नजर आते हैं. लुक इन दिस डायग्राम. ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द क्रोमाटिन मटेरियल. इट मींस कि इस वक्त पे ये जो सेल है ये रेस्टिंग फेज में है, अभी ये डिवाइड नहीं करने जा रहा. इट इज इन द नॉन डिवाइडिंग फेज. तो नॉन डिवाइडिंग फेज में हमें ये थ्रेड लाइक शक्ल में नजर आता है जिसको हम क्रोमाटिन मटेरियल बोलते हैं. बट अगर हम इनको क्रोमोसोम्स की फॉर्म में स्टडी करना चाहते हैं तो हम किस फेज में सेल को स्टडी करेंगे? हम इसको स्टडी करेंगे डिवाइडिंग फेज में. डिवाइडिंग फेज वो फेज होता है जिस टाइम पे सेल डिवाइड कर रहा होता है. बट अगर हम इनको क्रोमोसोम्स की फॉर्म में देखना चाहते हैं तो हम इसको देखेंगे उस फेज में जब सेल डिवाइडिंग फेज में होगा. उस डिवाइडिंग फेज में ये क्रोमाटिन मटेरियल थिक फॉर्म में आ जाता है और इनको हम इस तरह से क्रोमोसोम्स की फॉर्म में क्लियरली विजिबल कर सकते हैं. होप सो आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.